Good morning, 10th class friends. Now today we are discussing the combinations of resistance in parallel. Okay. So yesterday we already seen in series. Then now we are starting our resistors are. It means when the resistances or resistors are combined in the form of parallel. So look, resistors in parallel. Let us consider the arrangement of the three resistors joined in parallel with a combination of cell for a battery as shown in figure 12.7. So make a parallel combination, actually 12.6. Let us make a parallel combination XY. Okay, it means in between the X and Y we have to combine three different type of resistance which are having a different ohms. Okay, so resistance, that is the R1, R2 and R3 respectively. Connect it with a battery, a plug key and an ammeter as shown in figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor also V, and this can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. See figure 12.11. Okay. So 12.11, you can see that voltmeter are connected and with the R1, with R2 and with R3. Okay, and I will be the divided into the I1, I2 and I3. Okay. So take out the plug from the key and remove the ammeter and voltmeter from the circuit. Insert the ammeter in series with the resistors R1 as shown in figure 12.11. Note the ammeter reading I1. Similarly, measure the current through R2, R3. Let this be the I2 and I3. तो देखिए यहाँ पर हमको जो है वो ये देखना है कि R1 के अंदर से पास होने वाला करंट जो I1 है वो कितना है, R2 के अंदर से पास होके जाने वाला जो करंट है I2 वो कितना है, और R3 के अंदर से पास होके जाने वाला जो करंट है I3, उनको हमको मेजरमेंट करना है. वोल्टेज विल बी द सेम फॉर द सर्किट एंड यू ऑलरेडी सीन दैट इन सीरीज. ओके, दैट current will be the same for the whole circuit. So it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combinations. That is the I is equal to I1 plus I2 plus I3. Let Rp, it means the resistance in, it is the combined resistance in parallel. Combined resistance in parallel, that is the Rp, be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors. By applying Ohm's law of the parallel combinations of the resistors, we have I is equal to V upon R1. On applying Ohm's law, that is the Ohm's law to each resistor, we will have, that is the I1 upon, it means that will be the I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and I3 will be the V upon R3. Okay, so this combination you will see when, because you know about that I is the combination of individual currents. Okay, individual currents. Okay, and we are talking about the combinations of resistance in parallel. Okay, in parallel. So I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and I3 is equal to V upon R3. So from equations V upon R P and V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, when we are putting the values of these into the I, okay, then we will get that
I upon Rp is equal to I upon R1 plus I upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Thus we make conclude that the reciprocal of the equivalent resistance. देखिए यहाँ पर जो आपको चीज समझ आ रही है वो आ रहा है कि reciprocal of the individual resistance is equal to the combined resistance of the in the parallel. It means जो उनका equivalent resistance है वो एक्चुअली में उनके sum of the total of the reciprocal of the resistance के बराबर है, ठीक है ना? बहुत जल्दी हम उसको भी देखेंगे। So we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance. And now example 12.8 in the circuit diagram, देखिए एक डायग्राम है जिसके अंदर देखिए 12.9 के अंदर अकॉर्डिंग आप देख सकते हो. Suppose the resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12V. देखिए कौन कौन सी चीजें गिवन है, यू हैव टू बी नोटिस फर्स्ट. ओके, इट मींस इफ 12V इज गिवन दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इफ 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm is given that, then they will be set to R1, R2 and R3. Okay, and calculate the current through the each resistors. Okay, current आप आराम से निकाल सकते हैं because if you know the R1 value plus you are having you are knowing about the V values. अगर देखिए ये सीधी सी बात है, अगर आपको I1 निकालना है, V you knows that is the 12 and R1 you knows that is the 5 ohm, that is the 5 ohm. तो इजीली देखिए आप आराम से निकाल सकते हैं I1 की वैल्यूज, ठीक है. उसके बाद में देखिए आप जो है I2 की भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज R2 जो है वो गिवन है 10, ओके, एंड R3 जो गिवन है कितना 30, तो उसको भी आप आराम से निकाल सकते हो 12/30. तो देखिए इनका जो वैल्यूज आनी है वो सारी क्या है, I1, I2 और I3 वैल्यूज है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को आप टोटल करंट भी मान सकते हैं जो जितना सर्किट के अंदर है, ठीक है. तो टोटल करंट जो इसके अंदर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4A आ रहा है, ठीक है, 4 एम्पीयर. सो द टोटल रेजिस्टेंस Rp इज गिवन बाय 1/Rb 1/5 plus 1/10 plus 1/30, दैट इज द देखिए आप देख सकते हो सम ऑफ द टोटल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है आ रहा है उनके रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है, ठीक है. सो Rp इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है. और वैसे भी देखिए ये जो है उनके जो भी आना है यहाँ पर Rp वो उनके स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल से बिल्कुल कम आना है, ठीक है. देखिए आप देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट जो था वो हमारे पास 1/5 मींस 5 था, और उससे कम जो है वो हमेशा उससे ही लीस्ट आना है, वो 3 ओम जो है हमारे पास आना है. I hope you are understanding what we are doing here. Okay. So example 12.9. If it in figure 12.12, okay, that R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 20, R5 60 ohm, and 12 battery is connected to the element. Calculate the total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit. तो देखिए आप करंट आराम से इनके अंदर से निकाल सकते हैं बिकॉज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर गिवन. देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है ऑलरेडी गिवन है, हर एक जो है टोटल आपके पास में 5 आ रहे हैं. एंड आप जो है ये भी देख सकते हैं कि इनमें कौन सा अरेंजमेंट पैरेलल है, कौन सा सीरीज वाला अरेंजमेंट है, ठीक है. तो देखिए suppose we replace the parallel resistors R1 and R2 by an equivalent resistors of resistance that is the R dash, ठीक है, उनको अपन R dash मान लें. Similarly we replace the parallel resistors R3, R4 and R5 by an equivalent single resistance R double dash. Then using equation we have 1/R dash is equal to 1/10 plus 1/40. 1/10 और 1/40 देखिए आप देख सकते हो R1 और R2 है, ठीक है ना, both are in parallel. अरे पैरेलल दिख रहे हैं यहाँ पे 1/10 एंड 1/40, ठीक है. देन देखिए नीचे की वैल्यूज जो है उससे पहले हमने R डैश जो है निकाल लिया, दैट इज द 8 ओम. एंड फिर देखिए 1/R डबल डैश, तो उनके पास में आपके पास सबसे नीचे उस डायग्राम के अंदर आपको तीन जो वैल्यूज दी हुई है, तो 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60 जो है वो आप निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इनकी वैल्यूज को क्या कर लिया है, सबसे पहले अपर टू को एक साथ में निकाल लिया है, देन लोअर डाउन के जो ट्रीज है उनको एक साथ में उनकी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है. अंडरस्टूड. फर्स्ट इनकी 2 की वैल्यूज निकाल ली है, फिर यहाँ की वैल्यूज हमने निकाली, तो दोनों ही देखिए इसको हमने R डैश मान लिया है और इसको R हमने डबल डैश. ओके, तो देखिए 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60, सिंपली आपको उसका एलसीएम लेके उसको कर लेना है. 6/60 आ रहा है, दैट इज द R डबल डैश इज 10 ओम.
So 8 plus 10, now they are in series, so they are showing like a, so R is equal to R dash upon R double dash, that is the 18 ohm. So अब आप उससे आराम से जो है करंट निकाल सकते हैं, बिकॉज होल सर्किट का आपको रेजिस्टेंस पता चल गया 18 ओम, और होल सर्किट का वोल्टेज जो 12 V वो पहले से दिया हुआ था, ठीक है। देन I इज इक्वल टू V अपॉन R जो है आप आराम से निकाल सकते हो, दैट इज द I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू 12 दी हुई है, टोटल जो इनका रेजिस्टेंस जो आपने निकाला यहाँ पे, इसका पैरेलल दोनों मिला के जो है वो आपके पास 18 आ चुका है, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज आप आराम से देख सकते हो, और इनके अंदर जो आंसर आया हुआ है 0.67 एम्पियर। तो होल सर्किट के अंदर जो करंट है वो आपका 0.67 एम्पियर हो गया, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रूआउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, thus it is obviously impractical to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. So see, तो देखिए एक जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक था वो था कि डेली यूजेस के अंदर हम कैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज को यूज करते हैं, ठीक है ना। इट मींस व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस इन द डेली यूजेस और होम यूजेस फॉर दिस सर्किट। इट मींस द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड series, okay. So because they need currents of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of a series, देखिए पहला जो डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज का ओवर द पैरेलल, वो ये है कि हमारे जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके वॉट मींस उनकी पावर की जो अप्लायंस पावर है वो सभी की डिफरेंट वैल्यूज होती है, इसलिए हम उनको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके। बिकॉज सीरीज में जो है इनके पास में जो है आप देख सकते हो करंट की वैल्यूज जो है पूरे सर्किट के अंदर देखिए अलग अलग जो है यहाँ पे आ सकती है, लेकिन देखिए एक तो पैरेलल के अंदर आपके पास में स्विच अलग से होगा, ठीक है। उनकी जो पावर अप्लायंसेस जो है उनकी जो नीड्स है उसी के अकॉर्डिंग उनको करंट वहां पे मिलने वाला है। तो ये कुछ 2 या 3 जो हमारे पास वैल्यूज है उन्हीं की वजह से हम किसी भी अप्लायंस को सीरीज या पैरेलल में रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ घरों के जो हमारे होम के अंदर जो अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल के अंदर होते हैं, सीरीज के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर देखिए another major disadvantage of series circuit is that one component fails, the circuit is broken, okay। ये भी है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घर के अंदर खराब हो चुका है तो अदर पे रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज सीरीज में दे आर कनेक्टेड, ओके। यू आर जनरली सीन इन द डेकोरेशंस ऑफ लाइट इन द मैरिज एंड ऑफिसेस, देन one bulb is already blows, then other will not blows, okay। If the component works, if you have used fairly lights to decorate building on festivals and marriage celebrations, you might have seen that electric spending of time in trouble locating the replacing the dead bulb, which has to be tested to find and to use the bulb। देखिए इनका सीधा सा मतलब है कि अगर ऐसे समय में जो डेकोरेशन की लाइट के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे हजारों बल्ब एक साथ में लगे कुछ एक बल्ब में कुछ भी फॉल्ट आ चुका है, देन आपको उस हर एक बल्ब के अंदर आपको जाके चेक करना होगा कि कौन से बल्ब के अंदर जो है फॉल्ट है। तो ऐसा आपका बहुत ज्यादा टाइम और जो मनी है वो वेस्ट हो सकता है, ठीक है। और जब तक वो एक फॉल्ट मिलेगा नहीं अदर बल्ब्स विल नॉट क्लोज, ठीक है ना, दूसरे बल्ब भी जल नहीं पाएंगे। So parallel circuit electrical gadgets, the total resistance in parallel circuit is decreased. So this is helpful to particular when each gadget has a different resistance and requires a different current to operate properly. Now the heating effect of electric current. So what is this heating effect of electric current? Look, we know that a battery or a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between the two terminals that sets the electrons in motion to flow the current to a resistor or system of resistor connected to a battery। तो देखिए बहुत एक जो सेल जो है जनरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को आपने भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है ना। उसी की वजह से हम किसी भी अप्लायंस को रन जो है कर सकते हैं, छोटे मोटे जो भी हम उनके ऊपर जो है मतलब कि ट्रांजिस्टर वगैरह रेडियो वगैरह जो भी चलाना चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं। So we have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. Where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into a useful work, like in rotating the plates of electric fan. The rest of the source energy may be expended to heat to raise the temperature of the gases. तो देखिए इस इनके कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कभी कोई भी अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पावर को यूज करता है, ठीक है ना, बहुत सारा तो वो एक्चुअल उसके फंक्शन के अंदर ही लगाने वाला है। जैसे मान लीजिए ट्यूब लाइट जो है वो लाइट दे रही है लेकिन उसके साथ में वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब कई बार जो उसको पावर प्रोवाइड की जा रही है
वो 2 या 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप की एनर्जीज के अंदर चेंज हो सकती है, जिसके अंदर से सारी की सारी हमारे लिए शायद यूजफुल नहीं हो। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि फैन आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यू नीड एयर फ्रॉम द फैन, ठीक है ना, बट द रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ दिस फैंस except this one more thing is also be going on, that is the heating of this appliance, ठीक है ना। तो कई बार सिर्फ रोटेटिंग ब्लेड्स के अलावा इसके अंदर कुछ जो पार्ट्स हैं वो भी हीट हो रहे हैं, उनके अंदर भी एनर्जी लग रही है, बट वी आर नॉट हैविंग द यूज ऑफ दैट, ओके, हमको उसकी यूज की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी अप्लायंस को पावर दिया जाता है, ठीक है ना, तो एक लाइट या सोर्स ऑफ एनर्जी या कुछ भी जो रोटेटिंग कर रहा है, मोटर को रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके अलावा एक हीट भी उसके अंदर से अननेसेसरी जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग होती रहती है जितने टाइम वो रन हो रहा है, ठीक है। So rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gases. We observe in our जैसे कि देखिए मान लीजिए आप 8 to 10 आवर्स आपने कुछ टीवी वगैरह एलसीडी वगैरह स्टार्ट रखा है, ठीक है, वो आपको पिक्चर वगैरह शो कर रहे हैं, बट उसके अलावा उसके पीछे एक एक्स्ट्रा हीट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट हीट, ओके, ठीक है ना, हमारा उसका कोई वर्क नहीं है, हमारा उसको कोई हेल्पफुल हमारी तरफ से नहीं है। On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is the configurations of resistors only connected to a battery, the source energy consuming gas dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as the electric heater, electric iron and etc. तो देखिए कई बार हमको जो है कुछ रोटेट करने के अलावा किसी गैजेट्स को सिर्फ और सिर्फ हीट करने की जरूरत होती है। जैसे देखिए आपने देखा होगा इन विंटर डेज रूम हीटर्स, गीजर्स, ठीक है, टी केटल्स, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक केटल। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जिसके अंदर सिर्फ हीटिंग जो है रॉड जो है सिर्फ और सिर्फ हीट होती रहती है, ठीक है ना। वो हीट जो है एक्चुअल में देखिए रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और वहां पर उसकी हीट को हमको ज्यादा जरूरत होती है, उसकी लाइट को हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होता। अपने इलेक्ट्रिक ओवन जो है, टोस्टर वगैरह जो है, इनके अंदर भी देखा होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की जो हीट है उसी को हमको जरूरत होती है, ठीक है। कंसीडर अ करंट I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference be V. Let be the time during which as a charge Q flows across. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is Q. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t, as the power input to the circuit by the source is P is equal to V upon Q upon T, because we know about that I is equal to Q upon T, ओके। देखिए ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले भी देखा था कि I is equal to Q upon T। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है हम वो वहां पर आराम से रख सकते हैं। देखिए then the energy supplied to the circuit by the source in time, that is the T is P into T, और ये E is equal to P into T आपका जो फॉर्मूला है वो है आपके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पावर कंज्यूम्स के दौरान जो हमारे घरों के अंदर जो हम लाइट यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पावर, दैट इज द पावर इनटू द टाइम, ओके, कि कितना टाइम कितना पावर जो है, कितने अमाउंट का क्वांटिटी का पावर हमारे द्वारा एक यूनिट टाइम के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है। देन or the energy supplied in the time dt, so this is the VIT. What happens to this energy expended for the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. Thus for a steady current I, the amount of heat H is produced in time is that as H is equal to VIT, and applying Ohm's law we get, ठीक है ना। जैसे हम उनको यहाँ Ohm's law लगाएंगे, then VIT यानी देखिए आपने V की जो फॉर्म है, ठीक है ना, V is equal to IR होता है, आपने पहले भी देखा है, ठीक है। तो V की जगह जैसे हम IR लगा लेंगे, then I square RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I square RT. This is known as the Joule's law of heating. The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistance. In practical situation, when an electrical appliance is connected to a known voltage source, is used after calculating the current through it and using the relation I is equal to V upon R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टू एग्जांपल से देखिए हमारे पास एग्जांपल 12.9, देखिए सीधे से हमारे पास देखिए दो फॉर्मूला है जिसके अंदर हम आराम से जो है लाइट्स जो है इसके अंदर से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कि करंट की जो वैल्यूज है I is equal to V upon V, ठीक है। तो देखिए लुक द एग्जांपल 12.10, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 V. What are the current and the resistance in each case?
तो देखिए व्हाट आर द करंट मतलब जो इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है इनके केस के अंदर होना है फ्रॉम इक्वेशन 12.19 we know that the power input is P is equal to V upon I, sorry V into I, plus the current I is equal to P upon V। तो देखिए आपको ये जो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है you know about that P is equal to VI, thus the current I is equal to P upon V। तो देखिए अब आप करंट जो है आराम से निकाल सकते हैं because you knows about the power of the appliance and voltage of the appliance। तो देखिए पावर जो है वो आपका 840 वाट है and voltage 220, then current we can be notified that is a 3.8282 ampere, then the resistance of the electric iron। अब जब आपको you already knows about the current value and voltage आपको वैसे ही पता है, then आप उसका resistance भी निकाल सकते हो, वो है देखिए V upon I, that is the 220 volt upon 3.82 and 57.60 ohm। Next देखिए when heating is at the minimum rate I is equal to 360 watt upon 220 V and 1.64 ampere is the current and the resistance of the electric iron is R is equal to V upon I 220 V upon 1.64 ampere is equal to 134.15 ohm। An example 12.11 is a very easy, okay, already given 100 joule, okay, that is the heat, because heat energy and all we have to measure in the form of joules is produced each second means time is equal to 1 second, 4 ohm resistor means R is equal to 4 ohm, then you have to find only the potential difference, so it is very easy। H is equal to I square RT, we have to give the formulas, okay, then you will get I is equal to 5 ampere and V is equal to I into R, then 5 ampere into 4 ohm, that is the 20 V, okay। Next we will study in 10 minutes। Now students we are studying about the resistance in parallel, okay। So according to the law of combination of resistance in parallel, okay, this is the statement for us, stop writing and look here, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance, okay। So this is the reciprocal of the, it means when we are having the 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, okay, we are identifying here a combination for three different type of different resistances of resistors, okay। So the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in a parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances, okay। तो देखिए जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो तो हमारा ये ना, और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जिनका टोटल सम हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सारा ये है। तो देखिए ये जो चीजें आपको याद रखनी है, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। Suppose the total current flowing through the circuit is I, ठीक है, मान लीजिए कि देखिए टोटल एक करंट जो है इसके अंदर से फ्लो हो रहा है I, ठीक है, then through the resistances R1 will be the I1, तो जो R1 है, look here everyone, तो R1 की तरफ से I1 करंट, R2 की तरफ से I2 एंड R3 के अंदर I3 करंट हो जाएगा, बिकॉज़ देखिए यहाँ पर करंट का सेपरेशन जो है होना है, बिकॉज़ देखिए आपने देखा था सीरीज के अंदर करंट विल बी द सेम फॉर होल सर्किट, बट हियर इट इज द वोल्टेज द सेम फॉर द होल सर्किट, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। So through resistance R1 will be the I1, R2 will be the I2, R3 will be the I3, so total current I is equal to I1 plus I2 plus I3, that is the first equation। On applying Ohm's law, same it is I is equal to V upon R, since the potential difference V across all the same three series resistance like R1, R2 and R3 in the parallel, so we get I1 is equal to V upon R1, that is the equation number 3, I2 is equal to V upon R2, equation number 4, and I3 is equal to V upon R3, that is equation number 5। Then putting these values of I, देखिए I के अंदर जो है आपको वैल्यूज लगानी है, I की जो है V upon R हो गया, I1 की V upon R1, ऐसे देखिए, so I1, I2, I3 की वैल्यूज जो है आपने लगा ली यहाँ पर, then V कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो 1 upon R बचेगा, यहाँ पर भी V कॉमन, then 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, then cancelling V from both sides, दोनों की तरफ से V को कैंसिल करेंगे, then left to only 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये जो हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस से पैरेलल निकाला है, ये हमने 3 के लिए निकाला है, ठीक है ना, इससे ज्यादा अगर रेजिस्टेंसेस इनके अंदर जोड़ेंगे तो और भी इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, सो ऑन, ठीक है ना, 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus R5 और लाइक दैट। अब देखिए कुछ डेली यूजेस के अंदर क्या यूजेस है, ये 4 आपको याद रखने, जब भी बैड मतलब
बैड जो थिंग्स है सीरीज की, ठीक है ना, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, जब भी आपको पूछा जाए तो जस्ट इनका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं देखिए एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग क्या होता है, देखिए इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है ना, घरों के अंदर बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के गैजेट्स हैं और अलग अलग समय उनकी जरूरत होती है। जैसे डे समय में हमको लाइट की जरूरत नहीं है और हो सकता है विंटर के समय हमको नाइट में फैन या एसी वगैरह की जरूरत नहीं होती है, फ्रिज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डे समय में हमको वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। तो देखिए इनके कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस हमारे हाउसेस के अंदर होते हैं उनकी नीड्स जो है डे के समय या किसी भी टाइम जो है अलग अलग होती है। तो देखिए इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल देयर अदर्स अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली, कि पैरेलल के अंदर, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं सीरीज के अंदर क्या होता होगा। सीरीज का मतलब हो गया कि अगर एक अप्लायंस जो है आपका स्टॉप हो गया वर्किंग किसी भी डिफेक्ट के कारण, देन अदर अप्लायंस ऑटोमेटिकली विल स्टॉप टू रन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैरेलल का हमारे पास क्या बेनिफिट हो गया कि अगर एक अप्लायंस किसी वजह से खराब भी हो जाता है, जैसे बल्ब कई बार ब्लोज हो जाते हैं, फैन के अंदर जो मोटर्स वगैरह वो खराब हो जाती है, बट देखिए अदर अप्लायंस जो है वो कीप वर्किंग नॉर्मली, वैसे के वैसे चलते रहेंगे। हमारे घरों के अंदर जो भी दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो फंक्शन उनका सेम रहेगा। सेकंड देखिए ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच इन पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हो पैरेलल सर्किट के अंदर अलग अलग अप्लायंस के अलग अलग स्विच होंगे, जबकि सीरीज के अंदर भले चाहे कितने ही सारे हमारे पास अप्लायंस हो उन सबका स्विच एक होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक स्विच के द्वारा अगर कुछ भी डिफेक्ट आएगा तो हमको सबको रन एक साथ में करवाना होगा, ठीक है। अगर जरूरत नहीं है तो ठीक है। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज, ठीक है ना, 220 V एज द पावर ऑफ द सप्लाई है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर पैरेलल है तो उसके अंदर गेट द सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर वोल्टेज जो है थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट जो है इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई, ठीक है ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है हाउसहोल्ड सर्किट के अंदर रिड्यूस मतलब कम हो जाता है जैसे ही पावर सप्लाई जो है क्या हो जाए हाई हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है आपको बताइए पावर सप्लाई सिस्टम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस देखिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही ओवरऑल रेजिस्टेंस का हाउसहोल्ड सर्किट का बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, जबकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कई बार अधिक बढ़ जाता है टेंपरेचर वगैरह या किसी भी पावर की वजह से। सो करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस थिंग्स and next we will start our heating effect of electric current. Okay, thank you. So listen, देखिए heating effect of electric current already we discussed from the books. And now when an electric current is passed through a high resistance, okay, high resistance wire, you know about that, they are called the resistors, okay, maybe the nichrome and magnesium. And so resistance wire like a nichrome wire becomes so very hot and produce heat. So resistors is only work, they are just producing the heats only, okay, they are producing the energy or maybe light, but the main function of resistor is producing the or introducing with the heat. So produce heat. So this is called the heating effect of current. Okay. Sometimes we also call this is the Joule's law of heating, because Joule's that is the scientist they discovered this thing. So H is equal to I square RT is the formula or equation for heating effect of electric current. Okay. So heat is directly proportional to the squares of the electric current. Heat is directly proportional to the resistance, and heat is directly proportional to the time. It means with the time there is an increasing of heat. So what are the applications in daily life? It means इनके क्या uses है देखिए heating का. So देखिए many appliances generally we are using in our homes can we prefer this heating effect. Look, the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heater and geysers. Okay, तो ये सारे जो appliances जो हम घरों के अंदर लगभग यूज करते हैं, इन सब के अंदर हीटिंग की रॉड्स जो है वो लगी होती है और उसी के द्वारा जो हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। Now the heating effect of electric current is utilized in electric bulbs for producing light. इसके अलावा देखिए हीटिंग जो है वो बल्ब के अंदर से, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसके अंदर से लाइट को प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जाता है। It is used in electric fuse for protecting household
wiring and electrical appliances. Okay, so electric fuse is working only also on the basis of heating effect of electric current. Okay, देखिए कैसे वर्क होता है उसके अंदर आप जानते हो कि देखिए एक फ्यूज जो है उसके एक अपना देखिए करंट की जो वैल्यूज होती है उसके लिए फिक्स होती है, जैसे 0.1 एम्पीयर है, 0.5. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज. अगर उससे ज्यादा एक्सेस करंट उसके अंदर से फ्लो होने की कोशिश करेंगे, मतलब आगे से हाई वोल्टेज वगैरह इस टाइप से, तो वो जो है उनके अंदर का जो वायर है जिनकी एक अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो बिल्कुल से मेल्ट हो जाएगा और आपकी जो सर्किट है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो भी इसी पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पर. ठीक है ना, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने पे वो जो वायर है वो बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा एंड देन वो उसकी सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपकी जो अप्लायंस है वो सेव हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी. नाउ द इलेक्ट्रिक पावर, इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, सो इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया जो वर्क है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम के अंदर है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और या फिर इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है. देखिए तो एक्चुअल में देखिए उस इलेक्ट्रिक पावर के अंदर होता क्या है, P इक्वल टू W अपॉन T. देखिए मतलब पावर जो है एक्चुअल में वर्क डन है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया, वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया एक डेफिनेट यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम कहते हैं कि उस अप्लायंस का एक फिक्स पावर. इसीलिए देखिए पावर रेटिंग आपने उनके ऊपर देखी होगी 220 V और फिर 15 वॉट एंड 1000 वॉट और लाइक दैट. देखिए आपने देखा होगा 80 वॉट. ठीक है, तो ये सारी पावर रेटिंग, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वॉट है, बहुत छोटी यूनिट है बट ऐसा यूनिट है, इसी की जस्ट बड़ी यूनिट का हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज द 1 किलोवाट, दैट इज द 1000 वॉट. ओके, देन द पावर ऑफ 1 वॉट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड. ठीक है, हम 1 वॉट का पावर किसी भी अप्लायंस के द्वारा तभी लेंगे जब उस अप्लायंस के द्वारा 1 जूल का वर्क डन किया गया होगा 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे उसका 1 वॉट का इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, देन 1 किलोवाट अंडरस्टूड. W is equal to V into I. देखिए टोटल जो वर्क डन होता है वो होता है V into I into T. और जब हम पावर की बात करेंगे तो देखिए पावर आपको पता है VI तो होता ही है. देखिए V और I हमने जानते ही है क्योंकि हमने देखिए W जो है ये यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यूज आपको पता है, देखिए इसके कारण से. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. P is equal to W upon T करेंगे, W की वैल्यूज जो यहाँ पे रखेंगे तो VI हो जाएगा, देन अपॉन T बिकॉज ये T है, तो पावर जो है V into I into T upon T होता है, T से T कर देंगे. इसमें पावर जो है एक्चुअल में है जो किसके इक्वल होता है, V into I के, V into I के. फिर पावर के लिए हमारे पास देखिए एक और फार्मूला, तो देखिए ये 3 फार्मूलाज जो है तो ये आपको रिलेशनशिप बताते हैं आपस में किसके बीच में, पावर का रेजिस्टेंस के बीच में और वोल्टेज के बीच में. अंडरस्टूड, पावर रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो कई बार देखिए इनके बेस डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसके अंदर मान लीजिए कि देखिए V and I की वैल्यूज दे रखी है, आपको पावर निकालना है, I and R की वैल्यूज दे रखी है, आपको पावर निकालना है, V and R की वैल्यूज दे रखी है, आपको पावर निकालना है. और कभी कभार देखिए इनके अंदर पावर भी गिवन हो सकता है बट इन तीनों में से कोई 2 वैल्यूज आपके पास में जरूर होगा और तीसरा जरूर पूछा जाएगा. अंडरस्टूड, ठीक है ना. तो these 3 formulas you have to remember. ओके, नाउ द 1 किलोवाट आवर. तो देखिए ये जो 1 किलोवाट आवर है एक्चुअल में इसे हम जो है जनरल जो है कहते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है ना, जो 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल है एक्चुअल में वो हमारे पास कितना है, 1 किलोवाट आवर. इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 आवर के अंदर अगर हम 1000 वॉट अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगी, 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर. ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, ठीक है, फैन वगैरह मतलब कोई भी टोस्टर गीजर वगैरह कुछ भी, हैविंग अ पावर ऑफ रेटिंग, जिसकी पावर रेटिंग ऑफ कितनी हो सकती है, 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर. मतलब किसी भी जो हमारे पास अप्लायंस है अगर उसके द्वारा 1 आवर के अंदर 1 किलोवाट जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी उसकी प्राइस होगी उसके साथ में हमको उसको मल्टीप्लाई करना होता है. और आपने ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे होंगे जिसके अंदर लिखा होता है जैसे 3.60 इज द प्राइस फॉर द 1 यूनिट, देन जितने भी हमारे पास यूनिट आएंगे उनको 3.60 से हमको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है ना, कई बार 5.50 और इस टाइप से भी आ सकते हैं. देन 1 किलोवाट आवर के अंदर जो जूल्स एनर्जी होगा हमारे पास 3.6 into 10⁻⁶ जूल. और एक्चुअल में देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है जो हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप में कुछ अलग नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा की जा रही है. अदरवाइज तो देखिए हमारे पास एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट, ये सब कुछ एक ही है क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक प्रकार का किया गया वर्क डन है इन द फिक्स टाइम. ठीक है ना, एक फिक्स टाइम के अंदर जो किया. तो देखिए हम किलोवाट आवर को भी देखिए कहीं ना
इसी के टाइम से हम मेजर कर रहे हैं, क्यों नीचे 1 आवर आना है, ठीक है। आप इसको सेकंड वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं, मिनट्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी 1 किलोवाट के अंदर इतनी जूल्स एनर्जी होगी, ठीक है। और E इज इक्वल टू P इंटू T, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है ना। कितना पावर किस अप्लायंस ने यूज किया है किस फिक्स टाइम के अंदर, वो ही उसकी एनर्जी कहलाती है। अंडरस्टूड? So I hope you are understood this thing. Now we are understanding from the books. Look, देखिए practical applications of, ये हमने पढ़ चुकी अभी देखिए नहीं, देखिए practical applications of heating effect of electric current। देखिए so look, the generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of the electric current, ठीक है ना। कई बार देखिए जो कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना, वो हम नहीं चाहते कि उसके अंदर प्रोड्यूस हो, क्यों? क्योंकि अननेसेसरी इनके द्वारा जो है एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वो हमारे अप्लायंस की जो एज है उसकी लाइफ टाइम है उसको कम कर लेता है, ठीक है। देन देखिए in many cases it is undesirable, it converts the useful electrical energy into heat. In electric circuit the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry, iron, electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are some of the familiar devices that based on the Joule's heating of effect। समझ आ रहा है? देखिए जूल्स का हीटिंग इफेक्ट जो है वो ही हमारे पास ये है H = I²RT, और ये इसके जो डेली बेसिस के जो लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं इस हीटिंग लॉ को, तो ये हमारे पास उसके एप्लीकेशन है। अंडरस्टूड? नाउ देखिए द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। Here the filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it gets so very hot and emits light. It must not melt such as a high temperature। तो देखिए जो आपने देखा होगा बल्ब के अंदर बना होता है टंगस्टन के फिलामेंट्स, ठीक है ना, उनकी जो वैल्यूज है वो 3380 डिग्री सेल्सियस पे उनका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, बट वो कभी भी मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देन देखिए स्ट्रॉन्ग मेटल as it very hot and emits light, it must not melt such high temperature. A strong metal with high melting point such as tungsten, melting point 3380 degrees Celsius used for making bulb filament. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support. The bulbs are usually filled with a chemically inactive nitrogen and argon gases, ठीक है। तो इससे हीट जो है कम से कम देखिए इनके पास में जो है बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा करने से आप आराम से मतलब कि उसके अंदर से जो इनएक्टिव गैसेस जो है जो हमने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसके अंदर बल्ब के अंदर, उसके द्वारा जो है हीट अंदर के अंदर रहेगी और जो लाइट जो टंगस्टन के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है वो भी आपको बाहर बहुत दूर तक जाएगी। देखिए nowadays we are using the CFL or LED bulbs, we are not having the light or tungsten filament, but they are also producing a heat and light. The most of the power of consumed by the filaments appear as a heat, but a small part of it in the form of light radiated. Another common applications of Joule heating is the fuse used in the electric circuits। देखिए ये थर्ड वाला हम यहाँ पे देख ही रहे कि किस टाइप से जो है एक तो बल्ब के अंदर हो गया, थर्ड वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर, ठीक है। So it protects the circuits and appliances by stopping the flow of an unduly high electric current। देखिए अगर किसी भी अप्लायंस के अंदर अगर हाई करंट को आना है, ठीक है, तो वो कई बार देखिए वोल्टेज के रूप में मेन लाइंस के द्वारा एंटर हो सकता है, बट we can use our protect our appliances through uses of this electric fuse, because ऐसे समय में अगर कुछ भी हाई वोल्टेज आएंगे, first the voltage can enters into the electric fuse, और अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज की या हमारे अप्लायंस की उतनी कैपेसिटी नहीं है, then electric fuse will be the melt and our circuit will be the broken and we will save and protect our electrical appliances। The fuse is placed in series with the device and it consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron, lead, etc. If a current larger than specified values flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of the porcelain or similar material with a metal fence। तो कई बार देखिए ग्लास ट्यूब की फॉर्म में भी फ्यूज जो है आते हैं। आपने कंप्यूटर की जो टेबल वगैरह के ऊपर जो पिन वगैरह देखी होगी तो उनके अंदर ग्लास कार्ट्रिज के रूप में भी आते हैं। The fuse used for domestic purpose are rated at 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric iron which consumes a 1 kilowatt electric power when operated at 220 V, a current of
1000/220 एम्पियर, दैट इज द 4.54। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हमको किलोवाट आवर के अंदर उसके ऑपरेशन के बारे में पता है कि देखिए कितना यूज करने वाला है, तो हम आराम से उसके जो है एम्पियर का मतलब कितने एम्पियर का फ्यूज हमको बनाना है वो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने उसे किलोवाट आवर की जो पावर है उसको ऊपर रख दिया, ठीक है, और नीचे जो हमने क्या रख दिया, वोल्टेज। तो 1000/220 इसका मतलब उसको कितने एम्पियर का करंट चाहिए, 4.54। इसका मतलब हम आराम से उसके अंदर 5 एम्पियर के फ्यूज को यूज कर सकते हैं। देखिए सो इन केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज, ठीक है ना, हम 5 एम्पियर के फ्यूज को यूज करेंगे और उससे ऊपर के फ्यूज को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमारा जो ये मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है किलोवाट का जो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, तो वो खराब हो सकती है। देखिए नाउ द इलेक्ट्रिक पावर, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, दिस इज आल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन 12.21 gives the rate at which the electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as the electric power. The power P is given by P is equal to VI, P is equal to I square R and P is equal to V square upon R. तो देखिए ये 3 formulas जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। Then ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देखिए watt, already we discussed, and is the it is the power consumed by a device that carries the 1 ampere of current when operated a potential difference of 1 V. तो इसके द्वारा जो कैरी जो पावर है वो उतना ही है जब 1 एम्पियर के करंट जो है फ्लो हो रहा होगा 1 वोल्टेज के साथ में, ठीक है। द यूनिट वाट इज अ वेरी स्मॉल, ठीक है। देन देयरफॉर द एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट दैट इज द किलोवाट। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 1 किलोवाट मींस 1000 वाट। It is equal to 1000 watts. Since electrical energy is the product of power into time and time, the unit of electrical energy is therefore watt hour, WH. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electrical energy is the kilowatt hour, kWh, commonly known as unit 1000 watt into 3600 seconds। और ये देखिए आपके पास में आ जाएगा 3.6 into 10⁻�6 जूल, ठीक है ना, जो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे कि 1 किलोवाट आवर के अंदर इतनी एनर्जी जो है या इतने जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। देखिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल 12.12, देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 V जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। सो P is equal to VI, P is equal to VI 220 into 0.5। So P is equal to VI 220 V into 0.50 ampere, 110 जूल पर सेकंड, इट मींस 110 वाट। देखिए पावर निकालना था और उसकी जो वाट की जो एनर्जी है वो देखिए वाट के रूप में जो पावर है उसकी यूनिट जो वाट हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है ना। एग्जांपल 12.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3.00 per kilowatt hour? Okay, so kilowatt hour means 1 unit. Okay, so look, the total energy consumed by the refrigerator in 30 days would be 400 watt into 8.0 hour per day into 30 days, ठीक है ना। एक दिन के अंदर अगर देखिए 8 घंटे चलने वाले देखिए जो पावर अप्लायंस है और जिनकी पावर रेटिंग 400 की है, तो आपको उसके महीने का तो आप इंटू 30 कर लेंगे, दैट 96 किलोवाट आवर आ जाएगा। इट मींस 96 तो यूनिट आ गए और उसी 96 को हमको 3 रुपीस पर किलोवाट आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेना, देन 288.00 रुपीस विल कम। इतना मतलब कि आपका यूनिट का बिल जो है यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू।